Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 25 for the subject of Introduction to Information Technology. In this lecture we are going to discuss some important things regarding Microsoft Excel. We will first discuss about Microsoft Excel formula, and there are two types of formulas. The first one is the user defined formula, the second one is built-in functions. We will also perform some practical examples of both of these to get a better understanding of this feature of Microsoft Excel. So the first slide here is that the difference between formula and function. Now what is a formula? Formula is an expression that operates on values in a range of cells or a cell. यानी फार्मूला की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि फार्मूला एक एक्सप्रेशन है जो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है किसी एक वैल्यू पे या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पे। अगर एक वैल्यू है तो वो हमें नेचुरली एक सेल से मिलेगी, एंड इफ़ वी हैव ए नंबर ऑफ वैल्यूज़ वी विल हैव टू डिफाइन रेंज ऑफ द सेल्स और इंडिविजुअल सेल एड्रेसेस। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन इज़ ए स्टेटमेंट और एन इंस्ट्रक्शन दैट गिव्स अस सम वैल्यू। जैसे हम 1 + 2 लिखते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता 3। नाउ दिस 1 + 2 इज़ एक्सप्रेशन, 1 and 2 are the values and plus is the operation. So it means that an expression has operands and operators. So जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है या एक्सप्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल a + b, तो यहाँ पर जो आपके पास सिंबल्स हैं a and b, these are operands while the symbol plus is operator. So a and b are operands / values on which we are going to perform operation, and plus is a symbol that defines the nature of operation. So expression has these two things. Now what is a function? A function is a predefined formula in Excel, and Excel has a lot of functions, so you can say that there are a lot of predefined formulas in Microsoft Excel. What is the difference of, what is the advantage of these formulas? Formulas eliminate laborious manual entry while giving them human friendly names. यानी बजाय इसके कि आप कोई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए ख़ुद से फार्मूलाज लिखें, तो आपको बने बनाए फार्मूलाज एक्सेल में मिल जाते हैं, हम उनको ईजीली यूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन स्टैटिस्टिक्स वी हैव द फार्मूला ऑफ एवरेज, वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन, वी हैव वेरिएंस. So Excel provides us all these built-in formulas or built-in functions. We can easily use these functions to calculate the standard deviation or the average. So हमें खुद से इनके लिए complex formulas बनाने नहीं पड़ते. तो ये functions या built-in function का advantage है. Now what is a user-defined formula? It is a custom formula that is defined by the user according to his needs. Now it is a formula, so it will have values and it will also have different operators. Now there are different kind of operators. We have arithmetic operators that perform mathematical functions just like plus, minus, multiply and divide. Then we have conditional operators, greater than, less than, greater than equal, less than equal. Now these operators are used to perform comparisons. जैसे हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करें उसके लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं. फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर आ जाते हैं, एंड और एंड नॉट. एंड ऑब्वियसली ए यूज़र डिफाइंड फार्मूला कैन आल्सो कंटेन और आल्सो यूज़ बिल्ट इन फंक्शंस और फार्मूलाज. सो हम यूज़र डिफाइंड फार्मूला में ख़ुद तो फार्मूला बनाएंगे, लेकिन हम जहाँ ज़रूरत पड़े हम बिल्ट इन फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ हाउ वी कैन राइट user defined formulas.
first of all we need to select the cell for displaying the result. For example मैं यहाँ पर Excel ओपन कर लेता हूँ. सो ये मैंने बेसिकली डाटा एंट्री कर दी. यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दी 20 और यहाँ पर मैंने लिख दी 30. अब सबसे पहले तो हमने सेलेक्ट करना है कि इसका रिज़ल्ट हमने डिस्प्ले कहाँ करना है. वी कैन डिस्प्ले द रिज़ल्ट हेयर, वी कैन डिस्प्ले द रिज़ल्ट हेयर, वी कैन डिस्प्ले द रिज़ल्ट हेयर. लेट्स सपोज वी वांट टू डिस्प्ले द रिज़ल्ट in the cell C3. So it means that we have selected the cell for displaying the result. Now why we have selected the cell? To apply formula. क्योंकि फार्मूला हमेशा किसी ना किसी सेल पर अप्लाई होता है, इसलिए हमने सेल को सिलेक्ट किया फार्मूला अप्लाई करने के लिए. ना अगर तो मैं ये सिंपल ऐसे वैल्यू लिख दूँ तो ये तो सिंपल वैल्यू है. एक्सेल को हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ वैल्यू है और कौन सी चीज़ फार्मूला है. सो इन ऑर्डर टू डू दिस वी विल राइट और टाइप द सिंबल इक्वल. सो यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन इक्वल साइन. एंड आफ्टर टाइपिंग द इक्वल साइन वी कैन यूज़ अप्रोप्रिएट ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस. अब हम यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना. सो आई कैन राइट 20 + 30. सो प्रेस एंटर, दिस विल डिस्प्ले द रिजल्ट. सो दिस इज़ आवर फार्मूला. आप इसको फार्मूला बार में देखें तो आपको नज़र आ रहा है इज़ इक्वल टू 20 + 30. नाउ लेट्स सपोज आई चेंज द वैल्यू 20 to 50. लेकिन अगर आप नोट करें तो रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ. क्यों रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ? क्योंकि रिज़ल्ट में फार्मूला क्या है 20 + 30 का. मैंने तो सेल एड्रेसेस प्रोवाइड ही नहीं किए, मैंने तो सिंपल उसे 2 कांस्टेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी जिसको उसने ऐड किया और मुझे रिज़ल्ट शो करवा दिया. सो अगर हमने एक्सेल को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है सो वी विल बी यूजिंग सेल एड्रेसेस. फॉर दिस वी विल चेंज द फार्मूला. नाउ द फर्स्ट वैल्यू इज़ प्रेजेंट इन द सेल A1, so I will write A1. Then I will write the sign plus, and the second value is present in the cell A2, so I will write cell A2. And when I press enter, it will add both these values. Now let's suppose मैं इस 50 की जगह वैल्यू कर दूँ 10. So जैसे ही मैंने 10 वैल्यू चेंज की साथ ही ये रिज़ल्ट भी चेंज हो गया. दिस इज़ नोन एज ऑटोमेटिक recalculation. So this is the big advantage of Microsoft Excel, that if you are using cell addresses in a formula, so whenever the contents of cells are changed, it automatically recalculates values. आपको दोबारा से फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने सेल एड्रेसेस यूज़ किए हुए हैं फार्मूला में. अगर सेल एड्रेसेस नहीं यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक recalculation भी नहीं होगी. Next we have a few examples. The first example is add 3 numbers. Now let's suppose मैं यहाँ पर 3 numbers लिखता हूँ, number 1, number 2 and number 3, and here I have written 3 numbers 10, 20 and 30. Now again we will decide the cell for the results. Let's suppose this is a cell in which we are going to display the result. सो मैं यहाँ पर एक कैप्शन दे देता हूँ रिज़ल्ट की. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल सेलेक्ट किया, इक्वल साइन प्रेस किया, देन वी विल यूज़ द सेल एड्रेसेस E1 + E2 + E3. नाउ दिस इज़ सिंपली द रिज़ल्ट ऑफ these 3 values. Next we have calculate student marks percentage. As you know, for calculating a student marks percentage we need 2 things. The first one is obtained marks, the second one is total marks, and the third one is the result, that is percentage. Now let's suppose obtained marks जो हैं वो 68 हैं और total marks हैं 100. अभी तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि परसेंटेज 68 होगी, बट हाउ वी कैन यूज़ फार्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज. तो फार्मूला क्या होता है कि
परसेंटेज का। परसेंटेज का फार्मूला सिंपल सा है, ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल multiplied by 100. This is the formula for percentage. So it means we are going to use two operators. One is the divide operator and the second one is the multiply operator. So we will use these operators. So first of all, I will select the cell, then I will press the equal button. Now अब आप देखें कि कौन सा सेल जो है वो ऑब्टेन्ड मार्क्स डिस्प्ले कर रहा है या ऑब्टेन्ड मार्क्स शो कर रहा है। द सेल E8 इज कंटेनिंग द ऑब्टेन्ड मार्क्स, सो आई कैन राइट द सेल E8 डिवाइडेड बाय द सेल E9 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो दिस इज द परसेंटेज. दैट इज टू फाइंड आउट द टेबल ऑफ ए नंबर. Now let me create a new sheet. For example, I have the number which is 2 and I want to calculate table of 2. So let's suppose मैं यहाँ पर पहले मर्ज सेल कर लेता हूँ और मैं इसको शो कर देता हूँ table of 2. Now first of all हम यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन ऐड कर लेते हैं. 10 वैल्यूज़ हमने ऐड करनी है. सो आई हैव ड्रैग्ड इट 10 टाइम्स. इसी तरह हमें 2 भी 10 टाइम्स चाहिए, तो हम 2 को भी 10 टाइम्स ड्रैग कर देते हैं. इनकी विजिबिलिटी के लिए हम इनको सेंटर अलाइन कर देते हैं. नेक्स्ट वी नीड 10 वैल्यूज़. सो आई विल फर्स्ट राइट 1 एंड ड्रैग दीज वैल्यूज़. अब आप देखें तो फिल हैंडल ने सिंपली वैल्यूज़ को कॉपी किया, तो मैं यहाँ से इसको फिल सीरीज़ कर दूँगा. यहाँ पर हमें चाहिए इक्वल साइन, सो हम इक्वल साइन को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे क्योंकि हमने अभी फार्मूला नहीं लगाया. अब यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला. फार्मूला क्या? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस. सो वी कैन राइट इक्वल साइन B5 multiplied by D5 which is 2. इसी तरह इक्वल B6 multiplied by D6 which is 4. अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर सारे फार्मूलाज टर्न बाय टर्न लगाएंगे, लेकिन Microsoft Excel has a fill handle. We can simply use the fill handle to calculate these values. अब अगर आप देखें तो ये सारी वैल्यूज़ एक्चुअली करेक्ट हैं. सो इट मीन्स कि एक्सेल ने क्या किया, ऑटोमेटिकली सीरीज़ को फिल करते हुए फार्मूला के एड्रेसेस को भी चेंज कर दिया. सो एक्सेल हैज़ एनालाइज्ड दैट वी आर यूजिंग द सेल्स B6 D6 B5 D5. सो व्हेन वी यूज्ड द फिल हैंडल, एक्सेल ऑटोमेटिकली change the cell addresses B7 D7, B8 D8, B9 D9, B10 D10, B11 D11. So this is our basic task for representing table of 2. Now for example, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. अभी तो हमने 2 हार्ड कोडेड यूज़ किया. हम सिंपली चाहते हैं कि यहाँ पर हमने जो नंबर लिखा हो उसका टेबल डिस्प्ले हो. जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ तो 5 का टेबल डिस्प्ले हो जाए. मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ तो 4 का टेबल डिस्प्ले हो जाए. इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को करेंगे ब्लैंक. उसके बाद हमने सिंपल वैल्यू को कॉपी करना है एंड दैट इज दिस इक्वल्स टू C2. Now you can clearly see that 1 times 4. Now let's suppose हम इस पर फिल हैंडल यूज़ करके देखें. अब क्या हुआ? अब एक्सेल ने दोबारा वही गड़बड़ की, क्योंकि ये सेल C2 था तो एक्सेल ने सपोज कर लिया कि नेक्स्ट C2 होगा, फिर C3 4 होगा, फिर C5 होगा, फिर C6 होगा. तो इसलिए उसने इस सीक्वेंस को अपडेट कर दिया. अब इस प्रॉब्लम को हम किस तरह काउंटर करेंगे? फॉर काउंटरिंग दिस प्रॉब्लम वी विल स्पेसिफाई द सेल्स.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर डॉलर यूज़ कर दूँ, इसका मतलब है कॉलम सी फिक्स रहेगा. सो इफ़ आई यूज़ डॉलर बिफोर टू, इट मीन्स रो भी फिक्स रहेगी. सो अगर अब मैं इसको ड्रैग करूँगा, एक्सेल जो है उस 4 को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ किए $C$2. तो जब भी आप कॉलम नेम से पहले डॉलर लिखेंगे, इट मीन्स यू आर स्पेसिफाइंग द कॉलम, दैट कॉलम विल रिमेन constant. Similarly, if you have written dollar before $2, it means that you are making the row number also constant, कि रो नंबर भी चेंज ना हो. सो इस तरह से हमारे पास एक्सेल के फार्मूलाज में हम कॉलम्स एंड रोज़ को कांस्टेंट कर सकते हैं. अब ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ कॉलम को ही कांस्टेंट करें या सिर्फ रो को ही करें. इट विल डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन कि आप उसके अकॉर्डिंग कॉलम को कांस्टेंट करेंगे या रो को कांस्टेंट करेंगे या दोनों को कांस्टेंट करेंगे. सो दिस वाज द बेसिक आइडिया विद सेल एड्रेसिंग. नेक्स्ट वी हैव ए टास्क that is used to calculate the net salary on the basis of increment and allowances and tax. For example, we have net salary, we have basic salary, let's suppose 50,000. Let's suppose we have different allowances, just like 10% allowance 1, 15% allowance 2, 5% allowance 3, and then 10% or let's suppose 7% tax. and यहाँ पर हम नेट सैलरी डिस्प्ले करना चाह रहे हैं. अब बेसिक फंक्शन क्या होता है? बेसिक फंक्शनिंग ये होती है कि अलाउंसेस हमेशा ऐड होते हैं और टैक्स हमेशा डिडक्ट होता है. सो सबसे पहले हम अलाउंसेस कैलकुलेट कर लें. आप अलाउंसेस किसकी बेस पे बनेंगे? लेट्स सपोज सैलरी की बेस पे पढ़ेंगे. नाउ व्हाट इज़ द 10% ऑफ 50,000? वी विल राइट 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000. 50,000 लिखने के बजाय हम यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे? उसका सेल एड्रेस. इट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग द 10% ऑफ वट एवर द सैलरी इज़. Similarly 15% allowance to क्या होगा? 15 divided by 100 multiplied by cell C2. So we are calculating the 50% of the cell C2. So this is our 15% allowance. अब 5% allowance कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसी तरह इक्वल साइन 5 divided by 100 multiplied by 50,000. अब यहाँ पर 50,000 दोबारा लिखने के बजाय हम सेल एड्रेस यूज़ कर लेंगे. सो दिस इज़ आवर अलाउंसेस. नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट द टैक्स? वी विल राइट द इक्वल साइन 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय द सैलरी. नाउ दिस इज़ द टैक्स. अब नेट सैलरी क्या होगी? वी विल ऐड 3 अलाउंसेस विद द बेसिक सैलरी एंड सबट्रैक्ट द टैक्स. सो वी विल राइट द फार्मूला C2 प्लस C3 plus C4 plus C5 minus C6. So this is our formula and this is the net salary. Now if we change the salary to 24,000, net salary has also changed. If we change the salary to 95,000, again the salary is automatically changing. So this is basically automatic recalculation function of Microsoft Excel. Now we have the built-in functions or built-in formulas. In Microsoft Excel, there are predefined functions. और ये predefined function exist कहाँ पर करते हैं? आप Microsoft Excel को open करें तो यहाँ पर आपको एक formulas की टैब नज़र आ रही है. Now this contains different formulas just like AutoSum, like financial formulas, logical formulas, text formulas, date and time formulas, lookup and reference formulas, math and trigonometry formulas, and similarly statistical formula, engineering formulas, cube, information, compatibility and web formulas.
सो हर फार्मूला या बिल्ट इन फंक्शन की अपनी एक स्टोरी है और अपना उसका एक वर्किंग मैकेनिज्म है. बट एवरी फार्मूला हैज़ और फंक्शन हैज़ सेम स्ट्रक्चर. एवरी फंक्शन हैज़ अ नेम. नाउ एक्सेल यूजेस डिस्क्रिप्टिव नेम्स दैट आर ईजी टू रिमेंबर. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर स्टैटिस्टिकल फार्मूला पे जाऊँ तो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है CHISQ डिस्ट. इसका मीनिंग है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. सिमिलरली काउंट फॉर काउंटिंग. कोवेरियंस, then we have confidence, then we have average. इसी तरह अगर हम मूव करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन नज़र आता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आता है, सो प्रोबेबिलिटी नज़र आता है. सो दीज आर आल्सो डिस्क्रिप्टिव नेम्स. So Microsoft Excel built-in functions have descriptive names that are easy to remember. Then every function receives or accepts some parameters. Now what are these parameters? These are basically cell addresses. आप इनको वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने ऑटोमेटिक रीकैलकुलेशन को यूज़ करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल एड्रेसेस प्रोवाइड करेंगे. नाउ हाउ वी कैन यूज़ ए फंक्शन. The process is similar. First of all, we will select the cell for displaying the result, and then we will write the equal sign, and after that we will use the appropriate function. For example, we want to calculate the sum of these three values. एक चीज़ तो ये है कि हम इसको प्लस प्लस के साइन से ऐड कर दें जैसे पहले किया. सेकंड क्या है कि हम बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू इसको कर सकते हैं. Now we have a built-in function sum. So IntelliSense tells you that sum adds all the numbers in the range of cells. So you will open a bracket. Now it is asking for parameters. Now what are the parameters? हम इस तरह से भी पैरामीटर लिख सकते हैं, C2, C3, C4, C5 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तब भी ये सम डिस्प्ले कर देगा. वी कैन ऑल्सो डिफाइन रेंज ऑफ वैल्यूज जस्ट लाइक C2 एंड देन ए कोलन टू C5. नाउ दिस इज ए रेंज ऑफ वैल्यूज, एंड व्हेन वी क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर, इट ऑल्सो कैलकुलेट्स द सेम वैल्यू. सो दीज आर बेसिकली द वेज टू राइट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला. तो ये हमने लगाया सम फंक्शन. इसी तरह हम एवरेज फंक्शन लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम इन तीनों की एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो वन थिंग इज़ दैट कि हम यूज़र डिफाइंड फार्मूला यूज़ करें. वी यूज़ C3 प्लस C4 प्लस C5 एंड देन डिवाइडेड बाय 3. नाउ नोटिस यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स यूज़ किए. ब्रैकेट्स मैंने क्यों यूज़ किए हैं? प्रेसिडेंस के लिए. प्रेसिडेंस का मीनिंग क्या होता है कि पहले इन वैल्यूज़ को ऐड करें, उसके बाद 3 पर डिवाइड करें. इफ़ आई रिमूव दीज ब्रैकेट्स, तो इसका मीनिंग होगा कि सिर्फ C5 को 3 पर डिवाइड करें, बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ ऐड कर दें. सो फॉर इन डिफाइनिंग यूज़र डिफाइंड फार्मूलाज, you have to take care of the precedence. Now this defines first add all values and then divide the result with the value 3. अब next आता है कि हमने फार्मूला कैसे यूज़ करना है. We can use average formula. Now जैसे ही आपने average लिखा, आपको पता चल गया returns the average of its arguments. Arguments are also known as parameter. So again you will write the bracket and define the range C3 to C5. अब नोट करेंगे ऑटोमेटिकली काउंट करेगा कितनी वैल्यूज हैं. हमें इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं. वी विल सिंपली राइट एवरेज फ्रॉम दिस सेल टू दिस सेल. इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द एवरेज. नाउ लुक एट बोथ दिस वैल्यूज, दीज आर आइडेंटिकल एट सेम वैल्यूज. सो इट मीन्स दैट कि फंक्शंस को यूज़ करना ज़्यादा आसान है यूज़र डिफाइंड फार्मूलाज की जगह पर. Here we have different examples using mathematical and statistical functions. So एक मैंने आपको statistical function average दिखाया. Now let's suppose we have values 10, 20 and
30. We can select these values and go to auto sum and calculate the sum. Clearly इसने sum display कर दी. इसी तरह हम इन values को click करें and we can calculate the average. Now you can see that it has calculated the average of these numbers. Similarly, we can select these values and click on count numbers. Now it has shown that we have a total of 3 numbers because we selected these 3 numbers. Similarly, we can click on max, so it will give us the maximum number. तो अगर आप फार्मूला देखें तो फार्मूला क्या है, मैक्स और आगे उसकी रेंज. इसी तरह हम इन वैल्यूज़ को क्लिक करें and go for minimum, so it will tell the minimum value. Now what is the formula? Min, and then we have a range of values. So these are basically auto summation formulas. इसी तरह मैथमेटिक्स के हमारे पास कौन से फंक्शन है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ABS फंक्शन है. नाउ व्हाट इज ABS फंक्शन? इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू. एन एब्सोल्यूट नंबर हैज़ नो साइन और यू कैन से दैट इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर. नाउ लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर नंबर है 5 और यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू. सो आई विल राइट इक्वल then ABS and then I will give the parameter that is C30. Now when I press enter, sorry, B30. So when I press enter, it displays the absolute value. Now what happens if I write -5? So it again displays the absolute value. So it means that absolute function negates the negative sign. सिमिलरली इसी तरह हमारे पास यहाँ पर कोसाइन का फंक्शन है. फॉर एग्जांपल वी हैव एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड वी वांट टू कैलकुलेट द कोसाइन वैल्यू. सो वी विल राइट cos B15. सो दिस विल डिस्प्ले द cos 60 वैल्यू. सिमिलरली वी हैव द साइन फंक्शन. This displays the sine value. We have tangent functions that is used to calculate the tan value. So ये कुछ mathematics के functions हैं जो आप यहाँ पर use कर सकते हैं. Similarly, we have a fact function that is used to calculate factorial. For example, I write fact 5. So this displays the factorial of 5. I write a number here and want to calculate the factorial here. I can simply write fact F18. So this is the factorial of 4. If I change it to 3, the factorial is 6. If I change it to 2, factorial is 2. If I write 0, factorial is 1. If I write -5, factorial is error because we have no factorial for the negative number. So this symbol basically indicates that it is an error. Then we have power function. Now what is power function? Now let's suppose I write power 2 3. The result is 8. It means that it has calculated 2 raised to power 3 is equal to 8. So these are few mathematical functions. आप इन functions को खुद से perform करके देखें. जब आप इनको open करेंगे तो आपको इनकी डायरेक्ट जो है description नज़र आ जाएगी. आप इसकी description को यूज़ करते हुए इनको देख सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेंगे. सिमिलरली एक्सेल आपको हेल्प प्रोवाइड करता है कि कौन सा फंक्शन एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, कौन सा फंक्शन 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है. फॉर एग्जांपल विद साइन वी हैव ओनली सिंगल वैल्यू. इट मींस साइन विल एक्सेप्ट सिंगल पैरामीटर. सिमिलरली विद सम वी हैव ए नंबर ऑफ पैरामीटर्स, सो वी कैन यूज़ ए नंबर ऑफ वैल्यूज़. देन वी हैव स्क्वायर रूट फंक्शन. इट आल्सो एक्सेप्ट्स ए सिंगल वैल्यू. तो आप बहुत से फंक्शंस को देख सकते हैं. नाउ लेट्स सपोज वी हैव सम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस. एवरेज ये हमने करके देख लिया. फॉर एग्जांपल वी हैव द फंक्शन स्टैंडर्ड डेविएशन. Now there are two functions for population and for sample. For example, we are calculating the standard deviation for these values. So हम क्या करेंगे, equal standard deviation
और जैसे हमने ये किया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट एस फार्मूला आ गया फॉर सैम्पल, और यहाँ पर हम रेंज बता देंगे दोबारा D11 टू D16 लेट्स सपोज। सो जैसे ही हम इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू आ गई। इसी तरह जो लोग स्टैट पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे वो यहाँ से स्टैट के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। वी हैव जी टेस्ट, वी हैव वेरिएंस। सो आप ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। सो दीज वर आवर बेसिक मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। नाउ वी हैव स्ट्रिंग फंक्शंस। नाउ व्हाट आर स्ट्रिंग फंक्शंस? फॉर एग्जांपल आप यहाँ से टेक्स्ट पर जाएं, यहाँ टेक्स्ट पर आपको जितने फंक्शंस नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? स्ट्रिंग फंक्शंस। For example, we are using the concatenate function. I have written first name and last name. और यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कंप्लीट नेम। तो हम क्या करेंगे? कंप्लीट नेम क्या होता है? जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके बनता है। नाउ फर्स्ट नेम इज़ ABC and the last name is DF. So for combining these, we can use concatenate function. We will write equal concatenate. अब यहाँ पर हमने दो वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है, दो पैरामीटर्स देने हैं B3 एंड C3। सो जैसे ही हम ये लिखेंगे तो ये कंबाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो इन दोनों में स्पेस नहीं, एक्चुअली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में स्पेस होती है। तो इसके लिए हम फार्मूला चेंज कर सकते हैं। वी कैन राइट कंकैटिनेट B3 विथ कंकैटिनेट C3 and space and C3। अब मैंने क्या किया, एक वैल्यू तो मैंने B3 से डिफाइन कर दी और दूसरी वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, एक और कंकैटिनेट फंक्शन यूज़ कर लिया। इसको कहते हैं नेस्टिंग फंक्शंस और फंक्शन विद इन ए फंक्शन। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स यूज़ करते हैं। तो अब अगर आप देखें तो उसने कंकैटिनेट कर दिया। कंकैटिनेशन कैसे हुई? सबसे पहले इनर फंक्शन चलेगा जो C3 से पहले एक स्पेस कंकैटिनेट कर देगा। तो यहाँ पर से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? ई ब्लैंक स्पेस C3। और उसके बाद आउटर कंकैटिनेट फंक्शन चलेगा जो क्या करेगा? B3 और सेकंड के रिजल्ट को आपस में कंकैटिनेट कर देगा। सो दीज आर बेसिक स्ट्रिंग फंक्शंस। देन वी हैव लेंथ फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेंथ फंक्शन और यहाँ पर इसको पैरामीटर दे देता हूँ B3। सो इट कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट इट हैज़ a total of 3 characters. Similarly, we have a lower function. I can write lower and pass it a parameter. It will convert it into lowercase letters. Then we have a trim function. अब trim function क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा ABC और आखिर में मैंने स्पेसेस डाल दी। नाउ व्हाट विल हैपन? अब अगर मैं इसको कंकैटिनेट करता हूँ DEF के साथ इसी फार्मूला को यूज़ करके, सो आप देखेंगे कि यहाँ पर B8 कंकैटिनेट C8, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी स्पेस आ जाएगी। अब ये स्पेस किस वजह से? क्योंकि मैंने ABC के साथ बहुत सारी स्पेसेस यूज़ की। इसके लिए हम ट्रिम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। वी कैन राइट ट्रिम एंड पास इट ए पैरामीटर। नाउ ट्रिम फंक्शन क्या करेगा? स्पेसेस को ख़त्म कर देगा। सो ट्रिम फंक्शन किल्स द स्पेसेस। इसी तरह अपर फंक्शन है, आप इसको क्या यूज़ कर सकते हैं? फाइंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं
रिप्लेस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. दीज आर ऑल वेरी यूजफुल फंक्शंस. देन वी हैव डेट एंड टाइम फंक्शंस. नाउ व्हाट आर डेट एंड टाइम फंक्शंस? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डेट लिखता हूँ 15. इसकी हम सबसे पहले टाइप को कन्वर्ट कर लेते हैं डेट में. सो ये हमने डेट, इसकी डेट टाइप कन्वर्ट कर ली. नो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ टुडे. सो टुडे से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? टुडे से हमारे पास आज की डेट आ जाएगी. इसी तरह मैं यहाँ पर नाउ यूज़ करता हूँ. नाउ विल डिस्प्ले द डेट एंड टाइम. सो ये हमारे पास कुछ डेट एंड टाइम फंक्शंस हैं. इनको आप एक्सपेरिमेंट करके देखें तो आपको मज़ीद इनकी समझ आएगी. देन वी हैव लॉजिकल फंक्शंस. नाउ लॉजिकल फंक्शंस आर यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट वैल्यूज़. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमें ये बताओ कि एक स्टूडेंट पास है या फेल है, उसके लिए हम लॉजिकल फंक्शन यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं लेट्स सपोज 30. यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट पास है या फेल है. वी कैन सिंपली गो टू लॉजिकल एंड गो टू इफ़. नाउ जैसे ही हमने इफ़ प्रेस किया, इसने हमसे आर्गूमेंट मांगे. सबसे पहले इसने हमसे मांगा लॉजिकल टेस्ट. नाउ ए लॉजिकल टेस्ट विल कंटेन different logical operators and conditional operators like greater than, less than, greater than equal, less than equal, and or and not. So हम डिफाइन कर लेते हैं कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 40 प्लस हैं वो पास है और जिसके 40 से कम है वो फेल है. सो वी विल राइट इफ द वैल्यू ऑफ दिस सेल इज ग्रेटर देन 40 देन स्टूडेंट इज पास, अदरवाइज स्टूडेंट इज फेल. तो यहाँ पर आप देखें तो आपको एक लॉजिकल टेस्ट नज़र आ रहा है. नाउ लॉजिकल टेस्ट मीन्स इफ़ द वैल्यू ऑफ C13 इज़ ग्रेटर देन 40 देन द स्टूडेंट इज़ पास. वैल्यू इफ़ ट्रू, इफ़ दिस लॉजिकल टेस्ट इज़ ट्रू देन द वैल्यू विल बी पास, एंड इफ़ दिस लॉजिकल टेस्ट इज़ फेल और false then the value will be fail. So when we press OK, it displays the result fail. For example, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50, so it displays the result pass. So this is the basic conditional or logical expressions that we can use in Excel. तो सबसे ज़्यादा if important है. तो if में आपने and का यूज़, or का यूज़ और not का यूज़ ज़रूर देखना. In the coming lectures we will also see different examples of this as well. So I hope कि आपको ये functions और formulas का lecture समझ आ गया होगा. बाकी you people go and practice these out on your mobile phones as well as on your computers ताकि आपको इसका बेहतर आइडिया हो जाए.